Hello dear students. Today we will discuss about hydrocephalus. Hydrocephalus is basically made of two Latin words, hydro and cephalus. Hydro means water and cephalus means head. Thus the word meaning of the hydrocephalus is water in head. We can see in hydrocephalus there is excess cerebrospinal fluid which accumulates within the ventricular system of the brain as well as various spaces of the brain, leading to increased intracranial pressure and its related consequences. Hydrocephalus usually results due to the imbalance between its production and its absorption. So we have seen two main words in hydrocephalus, that is, one is ventricular system and another one is cerebrospinal fluid. So first of all we will discuss these two things. What is ventricular system of brain? Ventricular system of brain are the CSF containing chambers which are interconnected and they lie in the middle of the brain matter. These are four in numbers. There are two lateral ventricles which lie in both the hemispheres of the cerebrum. Third ventricle lies in between the two thalami, and fourth ventricle is at the level of cerebellum. It is at lower pons and medulla as well as cerebellum makes the boundaries of fourth ventricle. Lateral ventricle usually the two lateral ventricles open into third ventricle through foramen of Monro, and third ventricle opens into the fourth ventricle through duct of Sylvius. Fourth ventricle it continue into the central canal which run through the spinal cord, and fourth ventricle also drain into subarachnoid spaces of the brain through three foramens. One central foramen is known as foramen of Magendie, and two lateral foramen, and these are known as foramen of Laska. This is a picture depicting all the four ventricles. There we can see that there are two C-shaped lateral ventricle, both in cerebral hemisphere, right and left. Lateral ventricle, anatomically we can say that there are basically four parts, three horns and one body of the lateral ventricle. Body is in between the foramen of Monro, that is interventricular foramen, to up to the genu of the C, and anterior to the foramen is known as anterior horn, or it is also known as frontal horn because it lies in the frontal lobe of the cerebrum. Body lies in parietal, and body extend into the occipital lobe, and it is known as occipital horn or posterior horn, and the part which lies lateral ventricles part which lies in the this temporal horn is known as temporal horn or inferior horn. In between these two ventricles there is genu, septum pellucidum. Septum pellucidum separates these two ventricles, lateral ventricles, and they open into third ventricle, which is slit like chamber and which is in between two thalamus. And this third ventricle opens through a long narrow duct, which is the usual site of obstruction for causing obstructive hydrocephalus. This duct is known as cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius. And now after that duct of Sylvius, you can see the fourth ventricle, and fourth ventricle roof is somewhat tent shaped. Tent shaped roof is made by the peduncles of cerebellum, and the base or the floor of the fourth ventricle is made by lower pons and the cranial part of the medulla. This is various views of ventricles. One is anterior, another one which we have previously also seen is lateral. This is how the ventricles lie inside.
brain. Then after ventricle we will learn about CSF. So CSF is basically produced by choroid plexus. What is choroid plexus? Choroid plexus is tuft of capillaries which are below ependyma. Usually ventricles are lined by ependyma, like our alimentary canal is lined by mucosa. The same type of cells or similar type of cells are present over there in ventricular cell, maybe messy lining. These cells are known as ependyma. Below ependyma there are certain tufts of capillaries which are known as choroid plexus, and choroid plexus contributes about 70 to 80% of the overall production of the CSF. A small portion of CSF is usually produced by ventricular ependyma, that cells we are discussing about, and brain parenchyma also secretes some amount of the CSF. A combination of filtration across the endothelium of these capillaries and active transport of sodium by the choroidal epithelia. This is mechanism how the CSF is produced. It is produced by either filtration or some active transport of the sodium. The production rate is about 0.33 ml per minute. That means it is around 20 ml per hour and 500 ml per day. The total volume of CSF varies with the age. In pediatric age it is lesser, while in adults it is around 100 to 150 ml, of which 15 to 25 ml is only present in ventricles. Ventricles contains only 1/6 part of the overall CSF volume. Then how this CSF circulates? Usually the CSF is produced, most of the part of the CSF is produced by the choroid plexus present in lateral ventricles. Choroid plexus is also present in third as well as fourth ventricle, but lateral ventricle, as they are large in size and they have more choroid plexus, they produce maximum of the CSF. And from lateral ventricle through the axon of cilia, this CSF passes into third ventricle through the foramen of Monro, जो हमने पहले डिस्कस किया, and then it reaches through aqueduct of Sylvius into fourth ventricle. Then it exits through median foramen of Mezendi and lateral foramen of Lusca into the subarachnoid spaces, and from subarachnoid spaces CSF reaches parasagittal arachnoid granulation or so-called arachnoid villi, from where it is being reabsorbed into the sagittal sinus. Here it is absorption. Absorption is through arachnoid villi and granulation, which contributes maximum part of our absorption. Around 2/3 of the absorption occurs through these arachnoid villi. Remaining is through the nerve sheaths into lymphatics. The villi are herniation of arachnoid tissue into the dural venous sinuses. Two mechanisms have been proposed for the absorption. One is closed mechanism, where there is passive mechanism where there is seepage across the endothelial covering, and another one is open mechanism or maybe active mechanism, wherein it is supposed that there are some micro channels present in these villi, and there is a valve like mechanism where unidirectional flow of the CSF into the sagittal sinus occurs through these microchannels. This is a flow chart depicting the CSF circulation from lateral ventricle through foramen of Monro into third ventricle, and from third ventricle through aqueduct of Sylvius into fourth ventricle. Fourth ventricle continues into central canal, and CSF from central canal may go through these nerve sheaths, and may be drained into lymphatics, and most of the part from the fourth ventricle goes into subarachnoid spaces through foramen of Mezendi and foramen of Lusca, and from subarachnoid spaces into sagittal sinus through arachnoid villi. This is how the CSF circulation occurs. This is very important to understand the pathophysiology of
hydrocephalus, because there may be obstruction in any part of this communication channel, and that may result into obstruction of flow and accumulation of excess CSF in the ventricular system, which results in hydrocephalus. This picture depicts the flow जो कि हमने पहले डिस्कस किया, फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल से सब एक्नोइड स्पेसिस, एंड टॉप में देखेंगे आप कि सब एक्नोइड स्पेसिस से थ्रू एक्नोइड विलाई जाइटल साइनस में जो है जा रहा है, और नीचे वाली पिक्चर में दिखाया है कि एक्नोइड विलाई किस तरह से होती हैं और कैसे जो उस जाइटल साइनस में जो थोड़ा सा वायलेट या ब्लूइश दिखा रहा है, स्पीरियस जाइटल साइनस जिसमें लिखा गया है, उसमें जो है ड्रेन हो रही है through arachnoid villi. This is another picture depicting same flow of the CSF. तो उसमें दिखाया है कि कोरॉइड प्लेक्सिस से लेटरल वेंट्रिकल में बन रहा है, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सब एक्नोइड स्पेसिस थ्रू arachnoid this granulations into the sagittal sinus. Now this is all about the ventricular system of the brain and CSF physiology. Now we will come to the main topic, that is hydrocephalus. तो basically hydrocephalus क्यों होता है? On the basis of etiology we can differentiate, or we can classify hydrocephalus into two main categories. One is congenital, where there is causes are before birth, and acquired, where causes are after birth. Causes before birth, that is congenital causes. One is aqueductal stenosis, in which X-linked recessive character is one of the commonest genetic disorder behind this hydrocephalus. Aqueduct is the most commonest site for the obstruction in obstructive hydrocephalus. Obstructive hydrocephalus की हम आगे बात करेंगे, बट उसमें जो कॉमनेस्ट साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो होती है एक्वाडक्टल स्टेनोसिस. एक्वाडक्ट यूजुअली इज़ अराउंड 2 सेंटीमीटर, 18 mm लॉन्ग होती है और नैरो होती है, और वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. एक जेनेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे बॉयज़ में ही जो है हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है, और इसमें जो क्या रहता है कि एक्स लिंक्ड होता है, एक जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उसकी म्यूटेशन के कारण एक्वाडक्ट में स्टेनोसिस होती है. एक्वाडक्ट की जो फॉर्मेशन है प्रॉपरली नहीं होती है. देन अनदर वन इज़ अर्नोल्ड चेरी टाइप 2. इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद मेनिंजोमाइलोसील. आगे हम बात करेंगे मेनिंजोमाइलोसील की. तो अर्नोल्ड चेरी में यूजुअली इट इज़ ड्यू टू शैलो पोस्टीरियर फोसा शैलो होता है, जिस कारण से हर्निएशन ऑफ सेरेबेलम एज वेल एज ब्रेन स्टेम occurs into the foramen magnum, causing pressure over the fourth ventricle and resultant non-drainage of CSF into subarachnoid spaces, resulting in hydrocephalus. डांडी वॉकर में भी कुछ इसी तरह की पैथोलॉजी होती है. उसमें मेनली जो है पोशेफोसा में एक लार्ज सिस्ट होता है, और देयर इज़ हिजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया ऑफ दिस सेरेबेलम, और उस सिस्ट के कारण जो है फोर्थ वेंट्रिकल से ड्रेनेज नहीं हो पाता है CSF का. Then one of the commonest cause in India, developing country में mainly जो है congenital hydrocephalus is due to intrauterine infection. और intrauterine infection में हम जैसे बात करते हैं birth history में भी कि starch infections, viral usually infections can cross through placenta, some of the bacterial may also. But यहाँ पे जो मेन पैथोजेनेटिक होते हैं वो होते हैं जो रेड किए हुए हैं, T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R फॉर रूबेला एंड C फॉर साइटोमेगालोवायरस. तो ये तीन जो है कॉज करते हैं यूजुअली हाइड्रोसेफेलस अगर होता है. हालांकि इनमें इंसिडेंस कम रहता है इनके इन्फेक्शन के बाद भी, बट दे आर मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेक्टिव कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस. Then trauma, usually intraventricular hemorrhage or subarachnoidal hemorrhage or intracranial hemorrhage, which usually results in either obstruction of chorionic villi, जहाँ से वो ड्रेन होना था वहाँ पे जो है ब्लड के प्रोडक्ट्स जो हैं उसको ब्लॉक कर दें उन विलाइज को, या फिर एक्वाडक्ट को ही जो है ब्लॉक कर देते हैं या हेमरेज के पार्ट्स, जिस कारण से जो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस डेवलप कर सकता है. देन देयर आर सम arteriovenous malformation which may result in hydrocephalus, and some congenital cysts like arachnoid cyst may cause pressure over
various CSF containing species and result hydrocephalus. Then comes etiology of acquired hydrocephalus. congenital की हमने बात की. congenital में जो है इन्फेक्टिव एटियोलॉजी भी है, वहाँ पे etiology आपकी जेनेटिक भी है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि डेवलप कंट्री में ज़्यादा कॉजेज़ उनको देखा जाता है, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में इन्फेक्टिव कॉजेज़ ज़्यादा रहते हैं. बाकी ट्रॉमेटिक या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज वगैरह जो है प्री टर्म में यूजुअली हाइड्रोसेफेलस डेवलप करता है, तो उसमें कॉज होता है जर्मिनल मैट्रिक्स में हेमरेज या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. Then a few genetic disorder like Arnold-Chiari or Dundee-Walker, they are also very common. In acquired में जो सबसे कॉमनेस्ट होता है इंडिया में, इट इज़ TBM, ट्यूबुकुलर मेनिंजाइटिस. यूजुअली जो है TBM हैबिट्स इक्वली बोला जाता है कि ट्यूबुकुलर मेनिंजाइटिस कुछ ना कुछ जो है पीछे अपने छोड़ के जाती है, कुछ ना कुछ उपद्रव रूप जो है उसमें कुछ ना कुछ बचा रहता है, और हाइड्रोसेफेलस इज़ वन ऑफ द most commonest sequelae of TBM. Other causes in acquired are pyogenic meningitis, which usually results in obstruction of chorionic villi. Sorry, it is subarachnoid villi. chorionic villi तो प्लेसेंटा में होती है. पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो भी सारी जैसे हमने पैथोजेनेसिस पहले डिस्कस की. Then tumors are one of the commonest cause of acquired hydrocephalus. Posterior fossa tumors usually results in pressure over fourth ventricle and obstruction. And in tumors, medulloblastoma, astrocytoma or ependyoma, they all results in pressure related hydrocephalus. While choroid plexus tumor like choroid plexus papilloma usually results in overproduction. It is very rare tumor, but it can result in overproduction of CSF and there is imbalance between production and absorption. Production ज़्यादा हो रही है, absorption हो नहीं पा रही है उतनी, तो it will result in accumulation of CSF and hydrocephalus. और कुछ cyst like hydrated cyst can also result in hydrocephalus. Then comes pathology या pathophysiology. तो pathophysiology के basis पे भी जो hydrocephalus पे दो तरह से क्लासिफिकेशन है. वन इज़ कम्युनिकेटिंग, दैट इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव. इन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूजुअली जो है क्या रहता है कि देर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन अप टू द लेवल ऑफ सबएक्नॉइड विलाई. सबएक्नॉइड विलाई से जो है जो ड्रेनेज होना था, CSF एब्जॉर्प्शन होनी थी, वहाँ पे प्रॉब्लम है. तो नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है या ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, बट सबएक्नॉइड विलाई पे एब्जॉर्प्शन उसकी जो है नहीं हो पा रही है, दैन इट इज़ कम्युनिकेटिंग. एंड नॉन कम्युनिकेटिंग और जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूजुअली रिजल्ट्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ CSF usually from third to fourth ventricle. Most commonest site of obstruction is aqueduct of Sylvius, but it can occur anywhere. कि यूनिलेटरल जो है लेटरल वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मॉनरू के लेवल पे, या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस के लेवल पे, या फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है. फोर्थ वेंट्रिकल तक CSF जा रहा है, बट उसके आगे जो सबएक्नॉइड स्पेसिस में नहीं जा रहा है, दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. की पाथ में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, then it is obstructive. Absorption में कहीं प्रॉब्लम है, then it is communicating. Then एक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी ली etiology के बेस पे congenital and acquired, pathological के बेस पे communicating and non communicating, और जेनेटिक्स के बेस पे सिंड्रोमिक और नॉन सिंड्रोमिक. सिंड्रोमिक वो हुआ जहाँ पे हाइड्रोसेफेलस इज़ अ पार्ट ऑफ एनी ब्रॉड डिजीज़ और सिंड्रोम, जहाँ पे और भी लक्षण आपको दिख रहे हैं. जबकि नॉन सिंड्रोमिक में कॉज इज जेनेटिक बट देर इज़ नो अदर सिंड्रोमिक फीचर्स. देन कम्स क्लिनिकल फीचर्स. एक क्लासिफिकेशन में एक चीज़ इसमें नहीं आई है स्लाइड में, वो है एक्स वैक्वा डायलेटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, दैट इज़ नोन एज एक्स वैक्वा हाइड्रोसेफेलस. यूजुअली हाइड्रोसेफेलस में प्रेशर बढ़ा रहता है एंड देयर इज CSF लीकेज टू द पेरिफेरल टिश्यू. की वेंट्रिकल से CSF जो है ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो है ब्रेन में लीक होता है, ब्रेन मैटर की तरफ CSF जाता है. बट एक्स वैक्वा हाइड्रोसेफेलस में क्या रहता है कि ब्रेन मैटर की ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि सेरेब्रल पल्सी या सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया के केसेस में ब्रेन मैटर ग्रो नहीं कर रहा है, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है. तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जब वेंट्रिकल बढ़ने लगते हैं, वेंट्रिकुलर साइज बढ़ने लगता है, बट
there is no increase in CSF pressure in the ventricles, then it is known as ex vacua hydrocephalus. It is not a pathological and does not require any treatment. जैसे कि स्ट्रोक के बाद भी बड़ों में स्ट्रोक हुआ तो उसके बाद जब ब्रेन का उतना पार्ट नेक्रोज कर गया, सूख गया, श्रिंक कर गया और उस पार्ट को जो है ऑक्यूपाई करने के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टम एनलार्ज हो गया, तो आपकी स्कैन पे CT MRI में वो बड़ा दिखेगा, बट there is no CSF pressure increase, then it is known as ex vacua hydrocephalus. Then in clinical features, there may be two types of clinical feature: when the sutures are open like in infants or neonates, and when sutures are closed like in older children and adults. In neonate and infants, the main feature is there is disproportionate head growth, की head जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. हेड बढ़ रहा है यस, इसलिए जो है जो वेंट्रिकल्स बढ़ रहे हैं उसके कारण हेड बढ़ जाता है, एंड देयर इज़ नो मच राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच रिजल्ट्स इन वेरी माइल्ड सिम्टम्स. माइल्ड सिम्टम होंगे अगर हेड नहीं बढ़ता, जैसे सूचर क्लोज हो गए हैं तो हेड का साइज उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना CSF अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो CSF इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के सिम्टम दिखेंगे, और वो जो है ओल्डर चिल्ड्रन में हम बात करेंगे. तो जो न्यूनेट्स या इन्फेंट्स में होता है उनमें माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं इनिशियली, लाइक जॉइंट इरिटेबिलिटी रहती है, उनमें पुअर फीडिंग करते हैं या स्लो अटेनमेंट ऑफ माइलस्टोन होता है. तो ये इनिशियल सिम्टम्स ये हो सकते हैं विद इंक्रीजिंग हेड साइज. वाइल लेटर ऑन अगर जो है ऑब्स्ट्रक्शन है और हेड साइज बढ़ता रहा तो एक कंडीशन आएगी जब जो है ventricle will push the cortex or the cerebrum into a thin layer. तो उसमें जो है stretching of white fibers के कारण जो है there may be spasticity in lower limbs as well as opisthotonous posturing, and brain stem पे pressure पड़ने के कारण जो है उसमें brain stem के signs like shrill and high pitched cry और seizures और cardiopulmonary distress जो है उनमें हो सकता है. देन साइंस की बात करें तो साइंस में लार्ज हेड तो दिख ही रहा है विद फ्रंटल बॉसिंग, यूजली जो है फ्रंटल पार्ट इज़ प्रोमिनेंट. देन बल्जिंग ऑफ फॉन्टनली होगी, जो एंटीरियर फॉन्टनली ओपन है, यूजली पोस्टीरियर में भी देख सकते हैं हम कि वो जो है बल्ज आउट होंगे, वो बाहर को जो है अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़े होने के कारण जो है फॉन्टनलीज बाहर को निकले हुए होंगे. वाइडली सेपरेटेड सूचर्स होंगे. सूचर्स जब हम स्कल को पाल्पेट करेंगे, स्कल पे हाथ रखेंगे तो सूचर्स के बीच में हम जो है बहुत बड़ा गैप फील कर सकते हैं. एंड स्काल्प वेन जो है बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगी स्ट्रेचिंग के कारण. देन देयर आर टू मेन साइंस, वन इज़ मैकवेन साइन. मैकवेन साइन यूजली जब सूचर बंद हो जाते हैं उसके बाद जब रीओपनिंग ऑफ सूचर्स के कारण होता है, जिसमें कि हम जो है एक साइड पैराइटल बोन पे टैप करते हैं एंड दूसरी साइड की पैराइटल बोन पे स्टेथोस्कोप रख के सुनते हैं, एंड देयर विल बी क्रैक्ड पॉट लाइक साउंड व्हेन सूचर्स आर ओपन, तो उसको मैकवेन साइन बोलते हैं. देन सेटिंग सन साइन इज़ डायग्नोस्टिक, और सेटिंग सन साइन में क्या रहता है कि आगे हम पिक्चर्स भी देखेंगे कि देयर इज़ अपवर्ड गेज पॉलिसी, कि अपवर्ड जो है आइज़ अपवर्ड गेज में नहीं जाती हैं, आइज़ हमेशा नीचे ही रहती हैं. जैसे सूरज डूबते हुए जो है हम सूरज के नीचे का पार्ट नहीं देख पाते, ऊपर का पार्ट देख पाते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें जो है कॉर्निया, जैसे हम नॉर्मल आइज़ में देखते हैं तो कॉर्निया के नीचे हमको स्क्लेरा दिखती है, बट कॉर्निया के ऊपर अपर लिड के पीछे स्क्लेरा नहीं दिखती है. बट सेटिंग सन साइन में क्या होगा कि कॉर्निया नीचे की तरफ जा रही है. कॉर्निया को समझ लो कि वो जो है सूरज है और सूरज के डूबने की तरह वो दिखेंगी, कि कॉर्निया नीचे की जो आईलिड है उसके पीछे हमको दिखेगी आधी कॉर्निया, थोड़ी सा पार्ट ऑफ द कॉर्निया नीचे आ गया होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट है कॉर्निया का वो विजिबल होगा, और इवन स्क्लेरा भी विजिबल होगी अपर आईलिड और कॉर्निया के बीच में. दैट इज़ नोन एज सेटिंग सन साइन. देन पेपिलोडीमा इन्फेंट्स में देखना बड़ा मुश्किल है. देन अपर मोटर न्यूरॉन साइंस इन लोअर लिम्ब ड्यू टू जो स्ट्रेचिंग ऑफ वाइट फाइबर्स जो है, जिसके कारण स्पास्टिसिटी भी लोअर लिम्स में हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में देखने को मिलती है. तो अपर मोटर न्यूरॉन साइन लाइक स्पास्टिसिटी है या आपका इंक्रीज DTRs हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे. विवेंस की भी जो अपवर्ड मिल सकता है. तो दिस इज़ सेटिंग सन साइन, देख सकते हैं आप, इसमें स्क्लेरा जो है ऊपर वाली विजुअल है,
कॉर्निया के ऊपर अपर लिड और कॉर्निया के बीच में स्क्लेरा विजिबल है, वाइल लोअर आईलिड और कॉर्निया के बीच में स्क्लेरा नहीं दिख रही है। कॉर्निया जैसे सूरज डूब रहा है वैसे दिख रहा है कॉर्निया आइरस। और इसमें देख सकते हैं कि हेड बढ़ा हुआ है, फ्रंटल वॉशिंग है, फ्रंटल बोन्स प्रोमिनेंट हो रही हैं, फ्रंटल पार्ट। स्काल्प वेन डायलेटेड दिख रही हैं, हल्का सा इंट्रोफॉन्टनली भी हम देख सकते हैं कि बल्जिंग है। दूसरे वाली भी छोटी इमेज में देख सकते हैं कि बहुत जो है रेगुलर सा जो हेड साइज बढ़ा हुआ और बहुत मैसिव है, सेटिंग सन साइन उसमें भी है। और स्काल्प वेन डायलेटेड और पार्चमेंट लाइक बोन्स हो जाती हैं, बिल्कुल थिन हो जाती हैं बोन, पिंग पोंग स्कल टाइप में हो जाता है और वेन्स जो है प्रोमिनेंट होती है। शाइनिंग दिख रही है क्योंकि वो स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन से हो रही है। ओल्डर चाइल्ड में या एडल्ट्स में बात करें तो उनमें सिम्टम जो है आर ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है के कारण होते हैं। उनमें हेड साइज नहीं बढ़ता बल्कि उनमें रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साइंस लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस या गेट डिस्टर्बेंसेस, या ओल्ड एज में जो है डिमेंशिया या फिर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस वगैरह जो देखने को मिलते हैं। यूजली अगर बहुत एक्यूट इंसीडियस ऑनसेट है तो इट मे रिजल्ट इन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पुअर कंसंट्रेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस। Visual obscurations and papillary edema are more common in adults and both groups मतलब infants में और older children में। When in later stages when there is presence of bradycardia, hypertension and irregularity in breathing pattern, it indicates that elevation of intracranial pressure is massive and brainstem signs हैं, ये brainstem के pressurized होने के sign हैं, and they may result in death if not treated promptly। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाइड्रोसेफेलस में हमने बात करी कि लार्ज हेड होगा, स्काल्प वेन प्रोमिनेंट होंगी, है ना, वाइडली सेपरेटेड सूचर्स होंगे, टेंस और बल्जिंग फॉन्टेनलीज होंगे, पिंग पोंग लाइक स्कल होगी, फ्रंटल बॉसिंग होगी, इस तरह के साइंस आपको देखेंगे। और सेटिंग सन साइन एक डायग्नोस्टिक साइन उसमें हमको देखने को मिलेगा। तो डायग्नोसिस यूजली जो है क्लिनिकल फाइंडिंग जो हमने अभी बात करी इनके बेसिस पे होता है। और दूसरा जो हम देखते हैं ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस, इट शुड बी मोर देन 97 परसेंटाइल फॉर द एज एंड देयर शुड बी सीरियल मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस एंड इंक्रीज ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर in 15 days. It is indicative, not diagnostic, but it is indicative. Sometimes healthy child may have this much growth, but if there are other symptoms of hydrocephalus and there is increase of more than 1 centimeter in 15 days, then it is diagnostic. Then in infants और neonates हम जो है डायग्नोसिस के लिए यूएसजी करवा सकते हैं। यूएसजी से हमको वेंट्रिकुलर साइज और उजिंग जो है आइडिया हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वेंट्रिफॉन्टनली ओपन रहता है तो वो एक विंडो मिल जाती है हमको जहाँ पे बोन नहीं है, और यूएसजी हम वहाँ से कर सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन में या एडल्ट्स में वी हैव टू गो फॉर सीटी स्कैन्स और एमआरआईज टू विजुलाइज द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड जो कहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन की साइड क्या है, कितनी डायलेटेशन हो रखी है वेंट्रिकल्स की, ब्रेन के जो सेरेब्रम है उसका क्या स्टेटस है, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमको जो है स्कैन कराना पड़ सकता है। देयर आर सम इमेजेस ऑफ सीटी एज वेल एज एमआरआई। तो इसमें एक्वाडक्टल स्टेनोसिस है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल हमको विजुलाइज नहीं हो रहा है और थर्ड वेंट्रिकल तक जो है डायलेटेड है। जैसे फर्स्ट इमेज में देखेंगे जिसमें कि वेंट्रिकल्स वाइड दिख रहे हैं हमको, तो लेटरल वेंट्रिकल्स के जो है हॉर्न्स डायलेटेड हैं और थर्ड वेंट्रिकल इनके बीचों बीच हमको डायलेटेड दिख रहा है, जबकि फोर्थ वेंट्रिकल नीचे जो है नहीं विजुलाइज हो रहा है। वैसे ही जो है इस तरफ की इमेज में देखेंगे जहाँ ब्लैक दिख रहा है वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल मैसिवली एनलार्ज है, बट एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस से नीचे आपको फोर्थ वेंट्रिकल जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब एक्वाडक्टल लेवल पे स्टेनोसिस है, नैरोइंग है। देन दिस इज डैंडी वक्कर मालफॉर्मेशन जिसकी हमने बात की थी कि वहाँ पे क्या रहता है, सेरेबेलम का हाइपोप्लेजिया रहता है। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप एक ब्लैक सा सिस्ट सा आपको जो है पोस्टीरियर फोसा क्रेनियम में दिख रहा है। तो वहाँ पे सेरेबेलम जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे बहुत बड़ा सिस्ट सा है, और इस कारण से जो है लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल डायलेटेड, फोर्थ मतलब पोस्टीरियर फोसा में हमको जो है वो सिस्ट जो ब्लैक पार्ट सिस्ट का दिख रहा है।
दिस इज मेनिंजाइटिस रिलेटेड हाइड्रोसेफेलस। वहाँ पे जो है माइल्डली डायलेटेड जो है लेटरल वेंट्रिकल्स हमको दिख रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल उतना डायलेटेड नहीं है। और इसमें हम देख सकते हैं कि मेनिंजियल उसके साइन भी मिल रहे हैं एमआरआई की इमेजेस में। देन दिस इज़ हाइड्रेटेड सिस्ट, जो है एंट्रियल पार्ट में हम ब्रेन में देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट है, जिस कारण से वेंट्रिकुलर कॉन्टूर और वेंट्रिकुलर साइज डिस्टर्ब्ड और हाइड्रोसेफेलस उसमें हो रखा है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेनली जो मैक्रोस्पेली के कॉजेज़ हैं वो सारे जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकते हैं जब माइल्ड सा एनलार्जमेंट हुआ है हेड का। मैसिव एनलार्जमेंट है तो डायरेक्ट ही क्लिनिकली पता लग जाता है। तो माइल्ड एनलार्जमेंट में फैमिली लार्ज हेड जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकता है, या अदर कॉजेज ऑफ मैक्रोस्पेली लाइक एकोंड्रोप्लेजिया है, स्केलेटल डिस्प्लेजिया है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, या ओस्टियोपोरोसिस है, म्यूकोस पॉलीसैकेराइडोसिस है। इस तरह से बहुत सारे कॉजेज हैं मैक्रोस्पेली के, तो वो सारे जो है आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएंगे। देन ब्रेन के ही कुछ कॉजेज हैं, जैसे हाइड्रोसेफेली है, जहाँ पे जो है ब्रेन मैटर बना नहीं है, पानी ही है पूरे ब्रेन में, या पोरेंसेफेली है। ये सारे जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। देन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो है दो तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी हेड साइज नहीं बढ़ रहा है और सर्जरी में अभी टाइम है तो पैलिएटिव थेरेपी के रूप में, या सम टाइम जो है मैनेज करने के लिए हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और उस मेडिकल ट्रीटमेंट में यूजुअली हम यूज़ कर सकते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स या एस्टाजोलामाइड। एस्टाजोलामाइड जो है सबसे कॉमन यूज ड्रग है। ये जो है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज को ब्लॉक करती है, और कार्बोनिक एनाहाइड्रेज का रोल रहता है CSF सिक्रीशन में। हाउएवर जो इफ़ेक्ट है इनिशियल तो होता है, पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसके बहुत अच्छे नहीं देखते हैं। बट अगर माइल्ड सा हाइड्रोसेफेलस है तो इट कैन कंट्रोल, कि पोस्ट हेमरेजिक है, कुछ दिनों तक रहना था, उसको जो है कंट्रोल करने में एस्टाजोलामाइड हमको हेल्प कर सकता है। बट ऑब्स्ट्रक्टिव में यूजुअली हमको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है, और सर्जरी में जो बेस्ट ऑप्शन अभी तक की जाती थी वो था बीपी शंट। बीपी शंट मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलर आर्टेरियल या वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट्स भी डाल दिए जाते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबल इज वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल की एक शंट जो है, एक लेटरल वेंट्रिकल में शंट डाला जाता है, और वो जो है सबकुटेनियस टिश्यू से, सबकुटेनियस रूट से जो हम पेरिटोनियल कैविटी से जोड़ते हैं, और शंट में वाल्व रहते हैं जिससे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ CSF रहता है। तो CSF जो है ब्रेन से पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है। देन न्यूअर टेक्निक्स सब आ गई हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी या बहुत सारे अदर कॉजेज़ के लिए जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हो जाती हैं। ये थोड़ा सा न्यूअर मॉडलिटीज़ है। देन प्रोग्नोसिस कैसा है इस कंडीशन का? तो प्रोग्नोसिस अब जो है बहुत सही होने लग गया है, जब से अच्छे शंट अवेलेबल हैं, शंट डालने की टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं, तो मॉर्टलिटी हैव डिक्लाइन फ्रॉम 55 to 5%, and achievement of 50 to 70% of the incidence of normal IQ with an effective functional shunt। पहले जो देखा जाता था कि 60% ऑफ द चाइल्ड विद हाइड्रोसेफेलस यूजुअली हैव सब नॉर्मल IQ, कि मेंटली रिटार्ड होते थे वो। नाउ ओनली 30% ही जो है पुअर IQ वाले होते हैं, 70% तक जो है में हैव नॉर्मल IQ। और IQ के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कि IQ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि शंट कब डाला, एट विच एज द शंट वाज प्लेस्ड, एंड टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस क्या है, कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है कि नहीं है, स्टेटस ऑफ शंट फंक्शन की शंट सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसोसिएटेड एनॉमलीज, अगर है ही वो सिंड्रोमिक बच्चा है तो हो सकता है किसी और कारण से भी उसका IQ कम हो, एंड कॉन्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो रही हों। तो ये सभी जो है हमारे को IQ के डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोसेफेलस। थैंक यू वेरी मच। तो आपकी क्वेरीज और फीडबैक का इंतज़ार रहे।